we are introducing first time the guaranteed average rate, guaranteed minimum average rate that you will be getting in this new version. It is not a strategy. It is an actual system to make money every day and free more than 30 innovative algo strategies that you can see in my presentation. Not today's presentation, in my PowerPoint file. So major upgrade in AlgoTrader Prime and AlgoTrader Cloud. You can trade from anywhere as Google. Okay. So the disclaimer, number one, all the strategies set up discussed in this presentation or webinar are purely for educational purpose. Any stock, currency, commodity, or F&O trade referred in the webinar is only for understanding the logic of the strategy and setup. Developers, promoters, and employees of AlgoTrader are not SEBI registered advisors. Do not recommend to buy or sell any stock, currency, commodity, or future and option trade. This is as per the SEBI guidelines. Will not be responsible for any loss whatsoever due to any reason in using AlgoTrader or otherwise, or due to any strategy or setup. Please contact your financial advisor if you wish to buy or sell any stock, currency, commodity, or trade in F&O based on these strategies or setups. Be careful from the number of imitators who are trying to copy, steal AlgoTrader strategy setup without any risk control measures. Okay, now let us discuss what were the issues which were facing in the earlier AlgoTrader. I am audible now? Hello? Yes, sir. Okay. Now, issues in the earlier AlgoTrader. Number one was the chain reaction used to explode buy and sell trades by placing multiple orders on the same rate due to intraday volatility. When the stock used to move, say within a 2 rupees or 3 rupees, and you have a set off of 2 rupees or 3 rupees, then there used to be the multiple orders. And it used to simply explosion. You will have a 10 buy order, 10 sell order, or 5 buy or 5 your sell order on the same rate. So this was one of the major issues. Then entire buy and sell max quantity used to be consumed very early in the day, because there was a multiple orders, buy and sell orders at a very, very less rate. Say your set off is 2 rupees, then something may be a 2 rupees, something may be a 225, something may be 250 rupees, because of the difference in the buy and sell rate. So our entire buy and sell quantity used to be consumed. If you put, say, USD INR 50 quantity, or in the sale, if you have put a 500 as the maximum quantity, this will be consumed very early, maybe within a 3 rupees or 4 rupee range only. Or in case of your USD, within 10 paisa, your entire quantity used to be consumed. So benefit of averaging was not available in case of one-way movement. Whenever the stock was going one way or currency was going one way, up, or down, we were not getting the averaging benefit. With small movement of rate, net position used to change from long to short or short to long. When there was little change, maybe 2 paisa or 3 paisa, you will see because of the multiple order, your position will change from long to short. You are 25 lot long, and then after 2 minutes, you will become 25 lot short because of the chain reaction on multiple orders. It was almost impossible to hedge the net position due to frequent change in net position with small change in price. Because you are with a very small change, your position was changing. So how you will hedge your position? Suppose you want to buy or sell your call or put, it was almost impossible because of the change in the position. And multiple, we try to use multiple rows. You must have observed for last 2-3 months, we were using multiple rows whether we can control the chain reaction, but this was not an ideal solution. Whenever we were using the multiple rows, it used to consume our trading capital, and then the results were also not satisfactory. Higher margin were required in multiple rows to block higher quantity to get averaging benefit. We tried this multiple rows, but that used to block our quantity as well as block our margin to get some averaging benefit, but this was not an ideal solution. So an ideal solution would be to prevent AlgoTrader to place multiple orders at any rate. This is the real ideal solution. If we are able to control, or if you are able to prevent AlgoTrader that it should not place or it should not repeat any order on the same rate, then our most of the problems are likely to be resolved. We'll see that.
number of trades may be reduced because you are not placing the multiple orders. You are not allowing the algo trader to place multiple order. So number of trades may be reduced, but situation must always be under control. Well, as a trader or as an investor, you want the situation must be in control. Okay, let it be the number of trades are reduced, but situation must be in control. Algo trader should not control the how my position will be. I should control the how my position will be. So that is the ideal solution. And the user should get much better average price in case of one-way movement. This is one of the major issues we were facing because of the multiple orders, because of the quantity used to be consumed very early. So we were not able to control our trades and we were not getting the better average rate. So if we can do this thing, then this will resolve our major issues. The user should also be able to hedge his position with options. Since your position is not changing every time, so you can use the options, put options or call options or buy or sell, anything you want to do it, you should be able to do it. Let profit be less. Again, I'm repeating, let the profit be less, but possibility of any loss should be minimized. The what our members have expressed, or they see that suddenly they are saying when the currency used to move in one-way direction, they used to see the 3,000 rupees loss or 4,000 rupees loss. So the profit may be less, not an issue, but possibility of any loss should be minimized. So these were the issues we were facing in the earlier algo trader. And now we have to see whether we can control this thing in our modified or improved version. So major upgrade in algo trader, assuming or suppose Reliance CMP is 2,600. That means current market rate in the morning, Reliance is trading at 2,600. And you want to buy maximum quantity of 100 shares with 10 shares each. That means for each trade, there should be 10 shares at a set off of rupees 10, or sell maximum quantity of 100 shares with 10 shares each at 10 rupees, 10 set off. Now, this is your condition which you have put in the morning, and you are prepared to buy 100 shares or you are prepared to sell 100 shares. But your condition is that I should buy 10 shares at every 10 rupees set off, or sell every 10 share at every 10 rupees set off. This is the condition what you are putting in the morning. So your ideal stepwise indicative buy and sell prices should be like this. Suppose you want to buy 100 share and you have put the 10 rupees set off. That means you want to buy at 2,590 10 share, 2,580 10 share, 2,570 10 share. Like this, you want to buy 10 share for every 10 rupee fall in the price. Similarly, you want to sell 10 shares at every 10 rupees high. That means 2,610, 2,620, 6,630, like that. And your average price of these trade from 2,500 to 2,590 in case of buy, you have completed your 100 shares buy. So your average should be minimum 2,545. And your sale price should be 2,655 for 100 shares. How I come to the 2,545? I just average 2,590 to 2,500 divided by 10. When I added this value divided by 10, so my average price is coming 2,545, and my selling price coming to 2,655. So this is what I want when I'm starting my trade or when I'm starting my trading. This is how I want to bet. Now, currently in the current our algo trader, this was not possible because I don't know this 100 quantity may be consumed at 2,550 or 2,540, 330. I don't know how many intraday trades are happening. But ideally, I want at 2,590, I should buy 10 share, and 2,500, the last, I should buy the another 10 shares. So my average becomes 2,545. Now, the friends, your average price with the new algo trader will always be 2,545 or lower. That means, in the morning, when you want to buy 100 shares of the Reliance, your average price will be either 2,545 or lower. It cannot be higher than 2,445. But in the current algo trader, this was not possible. In the new version, it will be always be 2,545 or lower, and average sale price will be always 2,655 or higher, depending on number of intraday square off taken place. If there are 2 square off, then it will be slightly better. If there are 10 square off taken place, then it may be much better than 2,655. But you are guaranteed to get 2,655 in case of selling, and in case of buying 2,545.
Now, suppose the price moves only up to 2540 when it is moving down. In the above table, I considered the prices move from 2600 to 2500. But assuming the price moves only up to 2540, then your average price will be 2565 or lower. How the 2565 has arrived? It is the average of 2590 to 2554, 2540. If you take the average of this, it will come to 2565. So now you are guaranteed that your rate will be 2565 or lower. Similarly, if the price moves to 2660 and upside, then your average sale price will be 2635 or higher. Again, this is the average of 2610 to 2660. If you just take out the average, take your calculator, check the average of 2610, 2620, 3040, 5060, total divided by 6. It will be 2635. So your average sale price will be either 2635, that is your bare minimum guaranteed price, or it will be the higher. Can you see the major thing is happening now? That means you know in the morning what is your average price will be. It will be 2545 or better. If it gone to 255, if the prices move up to 2540, then your price will be 2565 or lower. Like that, you can plan your trade. So one of the major improvement in Algo Trader, now market cannot control your trade. You are the architect of your trades. You will be able to overcome fear and greed played by the market. Now the market cannot play with you. The FIAs and DIs cannot play with you, because you are deciding how many shares you want to buy and what is your minimum guaranteed price. It will be within that only. If the price moves only by 5 steps or 10 steps, the average will be the average of those trades. Now so if you know in advance what is my average price, then how the fear will come or how the greed will come. You know very well in the morning how your trades are going to happen, and then accordingly you can plan. It is such a wonderful thing what has come out with this this modified version. I just can't tell you. I can plan everything now in the morning. All my shares, all my trades, I can plan in the morning. What is going to happen today? It will be within that control. And in our current Algo Trader, this was not possible. I was not aware of what is going to happen by the end of the day. Now I know what my average price will be depending on how the prices moved. I will have one more feature that I will explain later. Now the chain reaction cannot consume your max quantity very early, so your major issue will be resolved. That means you will get up to the highest price, whatever that is moved on that particular day, in the lower side or higher side, and then your average will be come out. So it cannot be that what was happening in the current version, within 2 step or 3 step, my entire quantity used to be consumed, and I was not getting the benefit of averaging. Now you will be able to get. So how the new Algo Trader will work, that I will explain. Suppose my favorite stock, UPL, currently it is trading at 700. Buy and sell offset I put as 10. Buy a sell quantity I put as 100. And maximum buy a sell quantity I put as 600. So these are the conditions which I put in the morning. That means I want to maximum buy or sell 600 shares. My each trade will be of 100 shares, and buy and sell offset is 10 rupees. This is the color combination I've used. CMP is for yellow, green is for buy order, your pink is your sell order, quality, that is your, when there is no color, it's a quantity, and average is the red color. This is the nomenclature I'm going to use, 710, and thus there is a small one number is there. So here the 700 is indicate that the 700 date is triggered, and one indicate the trade is squared off. Then there is a underscore which will be there. It indicates that order already exists and hence new order cannot be placed. These are the two nomenclature I'm using it here. Now the morning, when your market is starting, your CMP is 690. So Algo Trader will place 2 order. One buy order is 690 and 710, it will sell order, it will be placed. Since it is the market is just started, your quantity traded is 0 and your average price is 0. Now the price is moved to 710. Now when the price is moved 710, 710 rate is triggering my sell order, because the sell order of 710 was already there in the system. So my one square of rates happened.
So when the 710 rate is triggered, it will again place the two order, one buy of 700 and one sell of 720. But since the 710 sale is triggered, I am now short by 100 shares and my average price is 710. Clear? When the 710 rate has come, my 710, my sell order, which was placed in the morning, that is triggered. So I am short by 100 share and my average price is 710. Now suppose the price moves to 720. Now the price moves to 720. Again, my one buy order of 710 will be placed and one 730, my sale order will be placed and my 720 raised is triggered because 720 sale order was there. Since the sale order was triggered, one buy order, one sale order, two are placed. So now I'm short by 200 shares because one was happened at 710, second sale happened at 720. So I am short by 200 shares and my average price is 715. How this is arrived? 710 plus 720 divided by 2 is my average price, that is 715. That means I am short by 200 shares at the rate of 715. Again, the price is moved to 710. From 720, the rate has fallen to 710. Now, at the 710, my buy order is triggered. So that is my number 3. Number 3 to number 3 on the buy order, 710 rate is triggered. So it will place two order, 700 buy order and 720 sell order. Now I have put 710, I have crossed it. The meaning of this is that 700 rate is already there. So 700 rate, this order will not be placed. Please try to understand this thing. 700, my buy order was already in the system. It was pending. That is the reason my 700 rate is not placed. Only my sale order of 720 is placed. And because I bought 100 shares, my net position has become 100 and my average price has become 720 because I'm only short by 100 shares now. The average of 700 is average of that my 100 share is 720. Is it clear to you? Any question on this? Am I audible? Okay, why the 700 note is not placed? Baba was moved, it has already moved. So how it will purchase at 700 now? No, 700, since 700 rate was already there in the system, another 700 rate is not placed. This was happening in our current version. But in this modified version, the 700 rate will not be placed because 700 rate is already there in the system. Already the order is pending. I have controlled my chain reaction here now. I am not allowing the algo to place another 700 order. Okay. So that is the reason. But that will remain open. That will remain open of the 700 rate. What is there? That order is already there. So that means I will not have the two order of 700 now. I will have only one 700. Okay. Right. And my average prices become now 720. Now, now the price is moved up from 710. The price is moved to 720. So now the fourth trade has taken place. That is the sale order is triggered 720 to 720. So because of that, my short quantity is increased from 100 to 200. But the 730 order cannot be placed because 730 order is already there in the system. So 730 order is not placed for the sell because 730 is already there. And my net quantity has become minus 200 and my average price has become 720. Earlier when the 710 wave came, sale order could not, buy order could not be placed for 700. Now the rate has gone up. So 730 rate, since it was already there in the system, another 730 rate is not placed. Okay. So my average is 200 and my average is 720 and my net quantity is 200. Now the price has gone from 720 to 730. What would have been the net quantity in the older version in this case? And then in the older version, what would happen is the multiple order will be placed. So that impact in the later stage will be very big. Very big. There will be no, there will be when the 700 rate will come, the two order will place, the 4 will place, 4, 2 plus 16 will place. Like that, the chain reaction used to create the problem. And that is the reason I was not getting the averaging benefit. Here, my target is to reach up to the 700 so that I get the full 100 quantity at every 10 rupees. For that, we have put up this system. Just try to understand and then we'll have your question. Okay.
So now the rate has gone to 730. Now because the rate is given to 730, it has placed two order of 720 buy, a 740 sell, because 730 rate is triggered, sale is triggered. But there was no 720 order pending, so a new 720 order is placed, and there was no 740 order in the system, so 740 order is also accepted, and your net quantity has become short by 300, and your average has further improved to 723.3. You know very well how your average is working, and you are able to get the average of 723.3. Now price has again fallen down. From 730, the rate has fallen to 720. So at 720, what it will do? It will trigger your 720, the item number 6. Item number 6 buy order has been triggered on the upside, and it is placed two order of 710 and 730. But 710 rate was already there, so 700 rate is not placed. Only the sale order is placed, and my net quantity has become minus 300 to minus 200 because the buy has happened, and my average is further improved to 725. Now the rate has gone up. 710 sell order is there. 710 ka sell order is there. No, 710 ka buy order. When the rate came to 720 here, yeah, so it has placed one buy order of 710 and one sell order of 730. Now 710 rate is already there in the system, so 710 rate is not placed. Yeah, correct. And 730 rate is placed because 730 rate was already triggered earlier. So that is the reason 730 rate is placed now, because 730 rate was not available to him. So the 730 rate is placed. So my net order has become minus 200, and my average has become 725. Now the rate has gone from 720 to 730 again. The rate has gone up. So just a minute. Yeah. 720 rate CMP आपका पहुंचा है, number 6 वाला जो है, उससे पहले एक 720 का buy order आपका open था, तो that will also get triggered ना? कहाँ पे बोल रहे हैं आप? कौन पे? यहाँ पे? नहीं, इसके आगे. ये वाले पे? हाँ, ये 720 का एक आपका ओपन पड़ा हुआ है. नहीं 730 के जब 730 का रेट आया तो सेल ऑर्डर ट्रिगर होगा ना. इसके आगे चलिए. ओके, यहाँ आ गए. हाँ, ये 720 का सीएमपी पहुंचा आपका. हाँ, तो ये 720 का एक ओपन पड़ा हुआ है ना आपका. हाँ, तो 730 का वो ओपन जो ऑर्डर था आपको एग्जीक्यूट हो गया ना, 720 वाला वो एग्जीक्यूट हो जाएगा ना. हाँ, 720 का एग्जीक्यूट हो गया, तो इसने दो ऑर्डर डाले, एक 710 का, और 710 का ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ था, 710 का ऑर्डर नहीं डाला उसने, लेकिन सेल का ऑर्डर मिल गया 730 का, 730 का उसने ऑर्डर डाल दिया. ठीक है, और 720 का ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. 730 का एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो आपका नेट क्वांटिटी माइनस 300 से माइनस 200 हो गया, और आपका एवरेज हो गया 725. ओके, नाउ अभी फिर 730 से 720 से 730 गया, तो 730 पे आपको 730 का सेल ऑर्डर 7 नंबर वाला एग्जीक्यूट हो गया, एंड इट इज प्लेस वन बाय ऑर्डर 720 बिकॉज 720 रेट वाज नॉट अवेलेबल, बट 740 का इसको सेल ऑर्डर ऑलरेडी अवेलेबल था 740 वाला, तो 740 का नया ऑर्डर नहीं डाला. So now my average has become my net quantity has become minus 300, and my average price becomes 726.7. Like this, the rate has gone to now 740. 740 पे मेरा 8 नंबर का जो था ट्रेड वो एग्जीक्यूट हो गया, मेरा सेल वाला. यहाँ पे 740 के नीचे मुझे 8 लिखना है, यहाँ पे 8 लिखना था, तो 740 पे मेरा 740 का रेट ट्रिगर हुआ, और इसने 730 का एक बाय ऑर्डर डाला और 750 का सेल ऑर्डर डाला, क्योंकि 730 का रेट भी इसको मिल गया और 750 का रेट भी मिल गया. माय नेट क्वांटिटी बिकम minus 400, माय एवरेज बिकम 730. देन 740 से रेट 750 गया, तो एट द 750 इट इज 750 माय सेल ऑर्डर वाज ट्रिगर, जो मेरा थर्ड रो है वो सेल ऑर्डर ट्रिगर हो गया, एंड देन इट इज प्लेस 740 का बाय ऑर्डर डाला और 760 का इसने सेल ऑर्डर डाला, और दोनों इसको ऑर्डर मिल गया बिकॉज देयर इज नो पेंडिंग 740 ऑर्डर एंड नो पेंडिंग 760 ऑर्डर, एंड माय एवरेज बिकम minus 500. नाउ द लास्ट जो मैंने दिखाया है कि 750 से रेट मेरा 740 आया, तो 10th वाला मेरा एग्जीक्यूट हो गया, और इसने जो है एक मेरा बाय ऑर्डर जो है 730 का नहीं डाला, क्योंकि 730 ऑर्डर इज ऑलरेडी देयर, बट 750 का सेल ऑर्डर उसने डाल दिया, क्योंकि 750 का देयर वाज नो ऑर्डर. 732 पॉइंट का मेरा एवरेज आया. ये तो एक हाउ दिस इज वर्किंग. बट अभी जिसका आप इसको एनालाइज कीजिए, इसमें दो बड़े जबरदस्त फीचर निकल के आए हैं. आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू फाइंड आउट दोस टू फीचर और नॉट. जबरदस्त, मतलब उसका कोई मुकाबला नहीं है. दो इस टेबल से आपको दो चीज मिल रही है. देखिए पहला वाला चीज, एक तो एवरेजिंग कॉस्ट बढ़ रही है हमारी. एक तो देखिए आपका जो एवरेजिंग जो है 710 पे 710 का एवरेज आना चाहिए था, लेकिन आपका एवरेज 710 ही आया है. 710 720 का आपका एवरेज 715 आना चाहिए. अगर आप मैथमेटिकली एवरेज निकालें 710 और 720 715 आया, मेरा 715 आ गया, फिर 20 आ गया. लेकिन 710 और 740 में मेरा एवरेज आपका 725 आना चाहिए था, और मेरा एवरेज मुझे मिला 726.7, क्योंकि मेरे दो स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं.
सिमिलरली 710 और 750 का जो मेरा एवरेज 730 आना चाहिए, बट मेरे को एवरेज मिल रहा है 734 का। दैट मीन्स यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व कि योर मिनिमम एवरेज प्राइस जो है वो 710, 715, 730 है, बट उससे बेटर आ रहा है। दैट इज द नंबर 1 एडवांटेज। एंड नंबर 2 एडवांटेज, कैन समबडी टेल मी? दैट इज द ग्रेट फीचर। इसी टेबल से एक और फीचर बहुत जबरदस्त निकल के आया है। सर क्वांटिटी हमेशा अंडर कंट्रोल है बहुत। नहीं, क्वांटिटी तो अंडर कंट्रोल है, बट एक जबरदस्त फीचर निकल के आ रहा है। वो कोई बता देगा तो मान जाऊंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। ये फीचर तो गारंटेड एवरेज प्राइस का तो समझ में आ रहा है अपने को कि माय एवरेज प्राइस विल बी ऑलवेज मिनिमम ये रहेगा या इससे बेटर रहेगा। ये तो आ गया फीचर। एक जो इसका जबरदस्त फीचर निकल के आ गया, वो अगर आपको मुझे बताएगा मैं मानूंगा मैं, यस अभी मुझे समझ में आ गया। एक जबरदस्त फीचर निकल के आया इसमें से। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आ रहा है ये। Sir, at any time only one buy or sell order. नहीं, वो तो बराबर है। वो तो अपन ने फीचर डाल दिया कि मेरा वो ऑर्डर रिपीट नहीं जा रहा है, मतलब मेरा एक रेट पे एक ही मेरा ऑर्डर रहेगा, वो है। लेकिन एक इसका इन्फ्रेंस जो निकल के आ रहा है ना, वो एक जबरदस्त फीचर है। This see, it is a trending market. It started with 710 and then it is going at 750. It is a one-side trend, whereas your average is 732, which is lower than 750. नहीं, वो बराबर है। दैट आई एग्री कि माय एवरेज प्राइस विल बी ऑलवेज बी बेटर देन द व्हाट इज द नेशनल एवरेज प्राइस। मैं 700 से 750 का जो मेरा नेशनल एवरेज प्राइस आता है 730, जो लास्ट लाइन में लिखा है, बट आई एम गेटिंग 734। फुल क्वांटिटी कंज्यूम नहीं हो रहा और यू आर ऑलवेज नहीं, एक और फीचर निकल के आ रहा है। आप देखो इसमें से, आप एक और जबरदस्त फीचर निकल के आ रहा है। वो हमको भी पता नहीं था, वो मेरा मतलब हमारा कहीं से हमको डिस्कवर हुआ वो फीचर। Then I found out कि यार कि ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन निकल के आया है। अभी चलो बताता हूं मैं आपको। मैजिक इन एल्गो ट्रेडर, योर नेट शॉर्ट और लॉन्ग क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस मूव बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ्स। यानी कि आप देखो ऊपर 710 रेट आता है तो आपका 100 क्वांटिटी शॉर्ट होता है, 730 आता है तो 300 क्वांटिटी शॉर्ट होता है, 740 आता है तो 400 क्वांटिटी शॉर्ट होता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है आपका। दैट मीन्स यू कैन 100% यू कैन कंट्रोल योर ट्रेड्स नाउ। कि अगर मेरा करेंसी 10 पैसा मूव हुआ है तो और मैं 2 पैसे का शॉर्ट ऑफ रखा है तो मेरा 5 क्वांटिटी ही शॉर्ट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा कभी भी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये नए वाले इसके अंदर। यू नो एग्जैक्टली कि आपका क्वांटिटी कितना शॉर्ट होने वाला, रेट कितना ऊपर गया तो आपका क्वांटिटी कितना शॉर्ट होगा, कितना लॉन्ग होगा। ये फीचर तो आपको मिल ही नहीं सकता कहीं भी। मैं बता रहा हूं, मैं दुनिया का कोई भी एल्गो लेके आ जाओ, कोई भी स्ट्रेटेजी लेके आ जाओ, ये गारंटी कोई नहीं देगा। यहां मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको कि 730 रेट आया तो 300 क्वांटिटी शॉर्ट होगा, 750 आया तो 500 क्वांटिटी शॉर्ट होगा, और आपका एवरेज प्राइस मिनिमम प्राइस से ज्यादा होगा। अगर ये चीज अगर आपको मॉर्निंग में पता चल गई, अब मुझे बताइए आपको क्यों कभी भी डर लगेगा, क्यों आपको ग्रीड आएगा या क्यों आपको फियर आएगा? यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग नाउ, एवरीथिंग इज अंडर योर कंट्रोल नाउ नोबडी कैन कंट्रोल यू। नो मार्केट में जरा 2000 पॉइंट नीचे जावे, 5000 पॉइंट ऊपर जावे, यू आर सिंपली नॉट बॉदर्ड बिकॉज यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे। इट कैन नॉट गो बियॉन्ड योर कंट्रोल। ये फीचर अगर रिटेल इन्वेस्टर को मिल जाए तो और क्या चाहिए। ये तो आज FIS कोई फीचर अवेलेबल नहीं है जो हमारा इस एल्गो आपको देने वाला है। आई नो कि मेरी एवरेज रेट क्या आने वाली है, आई नो मेरा क्वांटिटी कितना शॉर्ट होने वाला है, कितना लॉन्ग होने वाला है। जितना सेट ऑफ ऊपर जाएगा उतना क्वांटिटी मेरा शॉर्ट होगा, तो मेरा एवरेज प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़िया होना है और चीजें मेरे कंट्रोल में रहेगी। ग्रेट फीचर निकल के आया है। हमें नहीं पता था जब हमने डाला था ये फीचर, जब बना रहे थे हम लोग, ये फीचर जब मैंने एनालाइज किया, जब मैं ये PPT बना रहा था, अरे मैंने कहा यार ये तो मतलब एक जबरदस्त चीज मिला है अपने को जो पहले नहीं था। In the event of abruptly hitting the lower circuit or higher circuit, what will be the controlling mechanism? भाई जब आपका लोअर सर्किट हिट करेगा तो आपका जितना आपने सेट ऑफ रखे हैं मल्टीप्लाइड बाय दैट उतना ही क्वांटिटी आपका शॉर्ट होने वाला है, उससे ज्यादा नहीं होगा। मैं अभी आपको बताऊंगा आपको सेट ऑफ कैसे रखना है। थोड़ा सा 2 मिनट होल्ड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो भी कैसे निकाल के आया है। जबरदस्त निकल के आया है ये, ठीक है ना। So this major upgrade in Algo Trader will help the user in managing the max quantity and set offs as per his outlook before starting the Algo Trader। यानी कि मॉर्निंग में स्टार्ट कर रहे हो तब आपको पता है कि क्या करना है आपको और क्या होने वाला है। मतलब ये आपको फ्यूचर यू आर एबल टू प्रेडिक्ट यार। और क्या चाहिए अपने को? इफ आई नो कि यार आज मेरे को मेरा फ्यूचर मुझे पता है कि मैं 10 साल के बाद में मैं ये बनने वाला हूँ या मेरा ये होने वाला है, तो और मुझे क्या चाहिए? दैट यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट नाउ with confidence. So earlier version, एक मिनट पर आगे वाला स्लाइड मुझे कवर करने दो। अर्लियर वर्जन में
प्रॉफिट आपका ज्यादा था, थोड़ा प्रॉफिट आपको ज्यादा आता था, लेकिन हायर लॉस भी आता था, टू ओवर एवरेज आता था, एंड वेरी डिफिकल्ट टू हेज. दिस वाज माय अर्लियर वर्जन जो अब तक हम कर रहे थे. न्यू वर्जन के अंदर प्रॉफिट विल बी लेस, प्रॉफिट विल नॉट बी एज हाई अनलेस यू इंक्रीज योर क्वांटिटी. तो लेस प्रॉफिट, लेस लॉस, बट योर एवरेज विल बी मच बेटर एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑन द ट्रेड्स. मतलब आपका पूरा कंट्रोल रहेगा आपके ट्रेड में. ये वाइल्ड एनिमल नहीं रहेगा, ये एनिमल को आपने बिल्कुल आपने बांध के बिल्कुल मतलब इट इज बिकम योर पेट एनिमल नाउ. you know what it is going to do it. So that is the major difference. You can hedge your net position with options as Sam will not change suddenly. पहले वाले में क्या होता था, कब लॉन्ग हो जाए शॉर्ट हो जाए मुझे पता नहीं था. अभी आपको बिल्कुल पता है कि यार वो मेरा एवरेज धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, रेट भी मेरा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्वांटिटी मेरे कंट्रोल में. आप आराम से अपना पुट कॉल का जो आपको बेचना है खरीदना है, यू कैन डू इट. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द न्यू एल्गो ट्रेडर. नाउ हाउ टू मैनेज द सेट ऑफ. ये इसका जो सबसेट है जो हमने स्ट्रेटेजी बनाया है, जो नया एल्गो बनाया है, उसका अपने को सेट ऑफ कैसे मैनेज करेंगे ये मैं बता रहा हूं मैं आपको. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, नेट शॉर्ट और नेट लॉन्ग क्वांटिटी विल ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्राइस मूव बाय नंबर ऑफ सेट ऑफ्स. दिस इज द जनरल स्टेटमेंट व्हिच आई एम मेकिंग इट. ऑन द बेस्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट we are going to calculate how I can manage my set off. So this is the equation. This is the equation. This is mathematical equation. Set off is equal to expected maximum one day movement into quantity of each trade divided by max quantity. You can calculate now your set off exactly 100%. Up to the last penny you can calculate कि मेरे को मेरा set off इतना रखना है. Only thing you have to say कि what is the expected maximum one day movement, which you can calculate on the basis of ATR or 15 days moving average or 20 day moving average. अपना निकाल लो आप कि भाई मेरा जो है आज ये शेयर और आज करेंसी का मेरा मैक्सिमम वन डे मूवमेंट इतना होने वाला है. वो आपने डाला क्वांटिटी ऑफ ईच ट्रेड डिवाइडेड बाय द मैक्स क्वांटिटी. दैट विल गिव द आइडियल सेट ऑफ which will consume your full quantity. You will get the better average. All these issues which you are facing, that will be resolved. So suppose Reliance is expected to move by rupees 100 either in downward side or upward side. This is the morning में आपने ये सोचा है कि भाई आज Reliance 100 रुपया ऊपर जाएगा, 100 रुपया नीचे जाएगा. And you are willing to buy maximum quantity of 50 or sell maximum quantity of 50 in each trade of buy or sell quantity of 10. यानी कि मेरा buy sell 10 का रहेगा और मेरा जो मैक्सिमम क्वांटिटी 50 रखने वाला हूं. तो मेरे को सेट ऑफ कितना निकालना है. अभी हम लोग सेट ऑफ जो है ना बड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हिट एंड ट्रायल. कभी 2 पैसा का रखा, कभी 3 पैसा का रखा, कभी 1 पैसा का रखा, और उसमें हम एक्सपेरिमेंट किए पूरे 2 महीने. तो सब लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अभी आपको एग्जैक्ट फार्मूला मिल रहा है. तो सेट ऑफ यहाँ क्या आएगा, 100, दैट इज योर प्राइस. रिलायंस इज एक्सपेक्टेड टू मूव बाय 100, तो 100 into 10 was the your each quantity. तो 100 into 10 divided by 50. 50 is your max quantity, is ₹20. तो आपने अगर 20 रुपीज का सेट ऑफ रखा, तो और अगर रिलायंस अगर 100 रुपया मूव कर गया, आपका 50 का शेयर आपका आ जाएगा. एग्जैक्टली आपको निकल के आ जाएगा. कोई अभी आपको इसके अंदर आपको हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं एडजस्ट करना है. एग्जैक्टली आपको अपना सेट ऑफ निकल रहा है. सो यू आर विलिंग टू बाय मैक्स क्वांटिटी ऑफ 100 और सेल मैक्स क्वांटिटी ऑफ 100 इन ईच ट्रेड ऑफ बाय और सेल ऑफ 5 क्वांटिटी. पहले वाले में मैंने 10 क्वांटिटी रखा था, अभी मैं 5 क्वांटिटी पे कर रहा हूं. तो मुझे को मेरा सेट ऑफ निकालना है, कितना सेट ऑफ आएगा. तो अभी देखिए सेट ऑफ कैसा आएगा. सेट ऑफ विल बी 100 into 5 because my max buy and sell quantity is 5 divided by 100 because 100 was by my total max quantity. पहले मैंने 50 रखा था, अभी 100 रखा. तो 100 into 5 into divided by 100, I am getting my set of 5 rupees. तो 5 रुपए का मैं सेट ऑफ रखूंगा, तो I will be able to buy 100 shares with every 5 rupees मेरे क्वांटिटी का मेरा शेयर आता रहेगा. Now इसका एक और अभी आपका जो है नया इक्वेशन बन के आएगा. सपोज यू वांट टू कीप अ सेट ऑफ 10. आपने डिसाइड कर लिया मेरे को सेट ऑफ मेरा 10 रुपया रखना है, and willing to buy max quantity of 100 or sell max quantity of 100 with expected maximum one way movement of ₹50. तो अभी हमरे को ये निकालना है कि मेरा ईच ट्रेड का क्वांटिटी कितना हो. अभी हमने पहले कैलकुलेट किया था कि मेरा सेट ऑफ कितना आ रहा है. अभी मेरे को ये निकालना है कि मेरे को जो क्वांटिटी रखते हैं ना मॉर्निंग वाली कि भाई मेरे को 10 खरीदना है, 10 बेचना है. तो अभी मुझे दिखना है कि मेरा नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितना रखना है, उसका ये इक्वेशन आ रहा है. तो बाय एंड सेल क्वांटिटी इक्वल टू सेट ऑफ इनटू मैक्स क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड मैक्सिमम वन वे मूवमेंट. वो पुराना वाला जो फार्मूला था उसी का जो है मैंने वैल्यू मतलब फार्मूले को एडजस्ट किया. तो अभी मेरा आ रहा है 10 into 100 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 20. यानी कि इफ आई वांट टू कीप अ सेट ऑफ 10, आई वांट टू विलिंग टू बाय 100 और सेल 100
with expected movement of 50, I should keep my buy and sell quantity as 20. कुछ आपको एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला निकल के आ रहा है, उस फार्मूला के बेसिस पे आप अपना बाय सेल क्वांटिटी डालो या पहले वाले से सेट आउट डालो, आपका बढ़िया एवरेज आएगा और आपको पूरा का बेनिफिट मिलने वाला है। आपका सेकंड एडवांटेज कि आपका जो कैपिटल ब्लॉक हो जाता था जब हम मल्टीपल रोज डालते थे, वो भी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, एक रो से आपका पूरा काम होगा भी आपका। सो नाउ यू कैन प्लान योर ट्रेड्स एग्जैक्टली एज यू वांट, यू विल बी टोटली फ्री फ्रॉम द गेम्स प्लेड बाय द मार्केट प्लेयर। मार्केट प्लेयर को जो मर्जी करने दो, बम फूटने दो, एटॉमिक बम गिरने दो, कुछ भी होने दो, आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके ट्रेड आपके हिसाब से होंगे जो आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया है। इससे बढ़िया फीचर आपको अपने को क्या चाहिए? This will solve, at least this is solving my all the issues. I am totally least bothered now what is happening in the market. कल क्या होगा मुझे कोई चिंता नहीं है। So let the Sensex fall or rise by 2000 points every day. Elko trader will make money for you irrespective of any market condition within your parameter. जो आप पैरामीटर डाले उसके अंदर पैसा बनाएगा। आपने पैरामीटर आपने कुछ उल्टा सीधा डाल दिया या ज्यादा कम कर दिया तो पता नहीं है, बट अदरवाइज इनवेरिएबली इट शुड मेक द मनी फॉर यू। अभी आपको जो 2 स्लाइड दिखाया इसमें क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, नहीं तो देन आई विल टेल यू व्हाट आर द अदर इंप्रूवमेंट्स। तो ये 2 स्लाइड पे ही पूरा का पूरा नया वाला सिस्टम चलने वाला है। डू यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? यू कैन आस्क। आर यू फाइंडिंग दिस रियली बेटर नाउ? हेलो, या बोलिए। सर जैसे आपने वो स्लाइड में दिखाया 2 सेल के बाद एक बाई आया, फिर सेल आया, बाई आया। सपोज एक साथ सेल का आता है तो हाउ इट विल बी, हाउ इट विल? अरे भाई वो तो ये चेक करता रहेगा, इसका काम अभी ये है कि उस रेट का ऑलरेडी ऑर्डर पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। अगर ऑर्डर ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो नया ऑर्डर नहीं डालेगा, बस ये सिंपल उसमें ये आ रहा है। तो आपका एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आपको एक ही डायरेक्शन का एवरेज रेट आपका 3565 आ जाएगा। ये वाला जो आपका स्लाइड था ना, ये वाला में अभी आप ये बोल रहे हैं कि मेरा वन वे डायरेक्शन में चला गया, ये देखिए वन वे डायरेक्शन में चल रहा है। तो आपका 2600 से आपका 2500 आ गया, वन वे डायरेक्शन में आपका मार्केट नीचे करा। तो एवरी 10-10 रुपए पे आपके 10 शेयर आ रहे हैं, आपका एवरेज 2545 आ रहा है। तो यू नो वेरी वेल कि मेरा एवरेज 2545 आएगा या इससे बेटर आएगा, इससे खराब नहीं हो सकता। मतलब एवरेज आपका 2546 नहीं हो सकता, एवरेज जो है आपका इसी 10 अगर आया तो 2545 आएगा या इससे बेटर होने वाला है। तो वन वे डायरेक्शन में जाएगा तो आपको पता है कि मेरा एवरेज क्या आने वाला है, चाहे बाय साइड हो चाहे सेल साइड हो। जैसे इंट्राडे में मतलब इन द इवनिंग द ट्रेड गेट्स स्क्वायर्ड ऑफ, राइट? हाँ, तो उतने से आपका प्राइस बेटर होता जाएगा। नहीं, वो मतलब शाम को मान लीजिए स्क्वायर अप हो जाता है, हाँ, तो ये ट्रेड स्क्वायर अप हो जाएगा ना, तो फिर सपोज कोई बाय ऑर्डर नहीं आया तो हाँ, तो फिर आपको तो फिर जो प्रॉफिट आएगा वो आपका नेट प्रॉफिट हो गया, फिर आपको प्रॉफिट आना ही आना है। अगर आपके सारे रेट अगर आपके स्क्वायर ऑफ हो गए, हाँ, ठीक है ना, तब तो आपको 100% प्रॉफिट आना है ना। फिर तो आपका ये इसका जो बेसिक जो लॉजिक है ये अपना एल्गो का, वो यही है कि छोटा छोटा प्रॉफिट बना के मेरे को दे और उस टोटल को मैं टोटल करूंगा तो मेरा तो बढ़िया प्रॉफिट आ जाएगा। दैट्स आइडियल सिचुएशन। अगर आपका क्वांटिटी शाम को आगे 0 हो जाता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है जैसे बीए वाला जो था, इसमें अगर आपका लास्ट में जाके आप देख रहे हो आपका प्राइस का आपका एवरेज बढ़ता जा रहा है। अब ये 750, 740, 730, 720, 700 आ जाए तो आपका तो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा उसके अंदर। दैट्स आइडियल सिचुएशन। बस ऐसा होता नहीं है, या तो आपका वो 720 पे बंद हो जाएगा या 760 पे बंद होगा, वो पता नहीं है कुछ भी है। लेकिन एटलीस्ट आपको ये पता है कि कुछ भी हुआ तो मेरा एवरेज क्या आने वाला है, मेरी क्वांटिटी कितनी शॉर्ट या लॉन्ग होने वाली है, दैट यू आर एबल टू कंट्रोल नाउ, जो कि हमारे को अभी तक कंट्रोल नहीं था। वो अभी पूरा कंट्रोल अभी आपके हाथ में आता है। This one-way direction, if it goes, say for example, sell quantity, at the end of the day, that will remain as short only, no? हाँ, शॉर्ट फिर आपको उतना लेना पड़ेगा। वो आप मॉर्निंग में आपने तैयार थे ना, आप मैंने क्या कंडीशन डाला है यहाँ पे कि you want to buy maximum quantity of 100 shares or you want to sell maximum quantity of 100 shares, so it will sell 100 only. You know very well in the morning itself ना कि अगर वन वे अगर ये 100 रुपए ऊपर चला गया तो मैं 100 शेयर बेच दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा एवरेज बाई प्राइस वाज 2500 एंड आई एम एबल टू सेल एट 2655, so that's an excellent thing ना। आपको पता है कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ा जो एडवांटेज अपने को ये है कि यू आर एबल टू प्रेडिक्ट योर पोजीशन इन द कि क्या होगा शाम को। दैट इज द मेजर मतलब टूल अवेलेबल टू यू नाउ, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक हम भगवान भरोसे चल रहे थे। हाँ, अभी तक हम लोग जो थोड़ा भगवान भरोसे चल रहे थे कि यार वो ज्यादा ट्रेड हो गया, कम ट्रेड हो गया, इंट्राडे ज्यादा मूवमेंट हो गया तो क्या होने वाला है।
Sir, this Boss, my query was, suppose it is, at the end of the day it is short, say minus 100 or whatever it is. Now manually you have to close it by going for long, right? नहीं, क्यों मैनुअल क्लोज करना है? You are willing to sell your share ना? No, what I'm saying, suppose it is long at the end of the day, right? Now I want to square off, then I have to do manually, ना? then you do manually. और अगर आपने आई डाला है, नहीं, अगर आपने सी की जगह आई डाला है, MIS rate डाला है, तो आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। तब इसमें आई सही है या सही है? नहीं, सी अगर डालेंगे, सी इज फॉर CNC ट्रेड, इसका मतलब ये है कि अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट रह गए तो ब्रोकर कुछ नहीं करेगा। अगर आपने आई डाला है, दैट इज फॉर MIS ट्रेड, तो जो भी आपका 320 के ऊपर जो आपका नेट पोजीशन रहेगा, दैट आपका जो है मार्केट रेट पे ब्रोकर स्क्वायर अप कर देगा उसको। सर इसके सब करेंसी आई और इनमें दोनों में एक सेम मतलब ये नहीं, वहां पे CNC इज नोन एज M और I इज सेम, राइट। तो उसमें मतलब सही कौन सा, ये रन लेना बेटर है या आई लेना बेटर है? भाई वो डिपेंड करता है कि आप यू आर विलिंग टू कैरी योर पोजीशन और नॉट। आई विल प्रेफर आई, क्योंकि वो कल का कुछ बताना भरोसा नहीं है, करेंसी जो कितने में खुलेगा, करेंसी 50 पैसे नीचे भी खुल सकता है, ऊपर भी खुल सकता है, कुछ पता नहीं है, और आप डिलीवरी ले नहीं सकते उसके अंदर। तो आई विल प्रेफर आई। बट अगर आप जैसे 5-10 स्लॉट में अगर लॉन्ग शॉट हो गए तो फर्क नहीं पड़ता है, तो देन यू कैन डू विद M आल्सो, वो आपके ऊपर है। तो इफ यू आर क्लियर अबाउट दिस फीचर, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट आर द एडिशनल फीचर्स व्हिच आर कम अप। या गुड मॉर्निंग सर, दिस इज विजय सिंह फ्रॉम जयपुर। या सर इसमें एक सजेशन है मेरा, यहाँ बैक सर, लास्ट स्लाइड सर, ये वाला। यस सर। सर अगर सपोज 500 ये प्राइस 710 से 720 जाता है हमारा, तो हमारा सेल ऑर्डर हो जाएगा, करेक्ट ना? सेल और बाय ऑर्डर दोनों जा रहे हैं ना, बाय और सेल दोनों जा रहे हैं। नहीं करेक्ट, 720 होते ही हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइस 720 से बढ़ के 725 जाता है, देन कम बैक टू 710, तभी हमारा 720 पे हो जाएगा। हाँ 720 को 725 तो उसको रोटी नहीं मिले ना कुछ। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या सर कि 720 तक हमारा हो? अगर प्राइस 720 से 725 जा रहा हो तो हमारा 720 पे ना होके 724 पे हो? या वो कैसे बताएगा? वो कंप्यूटर को तो आप जो इंस्ट्रक्शन डालोगे वही करेगा ना काम। वो कंस्ट्रक्शन, द कंप्यूटर डजंट हैव अ थिंकिंग एबिलिटी, इट विल वेट फॉर द प्राइस टू कम आइदर 710 और 730, इट विल नॉट डू एनीथिंग बिटवीन 720 एंड 730। तो इस तरह का सर कुछ प्रोविजन नहीं हो सकता कि कुछ स्टॉप लॉस हो जाए कि 720 से ऊपर जितना जा रहा हो जाए, उसके 2 रुपए वापस लौटते ही वो हमारा नहीं, वो ट्रेडिंग रेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा आपको। वी हैव द ट्रेडिंग रेंज कॉन्सेप्ट, लोअर ट्रेडिंग रेंज और अपर ट्रेडिंग रेंज, तो वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो अप टू दैट ट्रेडिंग रेंज इट विल डू द चेन रिएक्शन, एंड बियॉन्ड दैट इट विल नॉट डू द चेन रिएक्शन। वो वाला फीचर यूज करना पड़ेगा आपको। वो इसमें इनकॉर्पोरेट हो सकता है? नहीं, इसमें नहीं, वो तो उसमें डाला है, वो तो हमने एक्सेल शीट में डाला हुआ है ना। वो तो ये तो मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ कि हाउ द न्यू एल्गो ट्रेडर इज गोइंग टू वर्क। इट्स जस्ट अ कांसेप्ट व्हिच आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। ओके। बाकी सारे जो रिस्क कंट्रोल मेजर्स हैं वो तो हमारे जो 10 रिस्क कंट्रोल मेजर जो हमने डाले हुए हैं वो हमारा उसमें मैंने पहले एक्सप्लेन किए हुए हैं। देयर आर 10 रिस्क कंट्रोल मेजर्स हैं बाय व्हिच यू कैन कंट्रोल योर पोजीशंस। ओके, यस सर, या सो ये हो गया हमारा हाउ टू मैनेज योर सेट ऑफ। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आर द एडिशनल न्यू फीचर्स। तो अदर मेजर चेंजेस इन एल्गो ट्रेडर, नंबर 1, 3 options to place buy and sell rate at the time of starting the algo trader. You have 3 options available now. Number 1, you can use your own desired buy and sell rate. यानी कि अगर आपका UPL 700 में है और आपका बाई प्राइस 690 था, तो यू कैन डिसाइड कि यार इस रेट से मुझे बाई चालू करना है, इस रेट से सेल चालू करना है। दैट इज योर ओन चॉइस। यू डिसाइड कि किस रेट से चालू करना है। दैट इज नंबर 1 चॉइस। Number 2 choice is the bid ask rate. You can put the bid and ask. So algo trader will place orders on the basis of best bid and best ask rate. जो भी उसको वहां मिलेगा मॉर्निंग में 9:15 पे जो बिड एंड आस्क रेट मिलेगा उसके ऊपर एल्गो आपका ऑर्डर डालेगा। लेकिन इसके अंदर इशू क्या आने वाला है, सिंस देयर विल बी 2 डिफरेंट रेट, आपके चेन रिएक्शन उस रेट के हिसाब से चलते रहेंगे, तो आपको वो एवरेजिंग वाला जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा जो हमने नए वाले में डाला है। ठीक है ना? बट यू कैन पुट इफ यू वांट टू यूज द बिड एंड आस्क रेट, यू हैव अ चॉइस अवेलेबल टू यू। जैसे अगेन आई विल टेल यू एग्जांपल कि जैसे अभी यूपीएल 700 का सीएमपी है, तो बिड एंड आस्क क्या होगा उसका? बिड एंड आस्क रहेगा 700 एंड 700.05, ये बिड एंड आस्क रहेगा। तो इसको क्या करेगा, जब 700.05 का जब उसको 10 रुपए का सेट ऑफ है तो उसको एक और जगह मिल जाएगा जब नीचे आएगा, क्योंकि वो तो 700 वाला दूसरा ऑर्डर चल रहा है। सो इसकी वजह से आपकी 2 लाइनें चलना चालू हो जाएगी।
बिड एंड आस्क वाले में। तो इसको हमने चेंज करके जो नए वाले एल्गो के लिए जो बेस्ट सेटिंग है वो है आप एलटीपी यूज करो। तो एलटीपी सिर्फ एक ही रेट रहेगा। सो ये आपका जो मल्टीपल ऑर्डर एग्जैक्टली आपका कंट्रोल होगा इसमें। बिड एंड आस्क में आपका मल्टीपल ऑर्डर इतना कंट्रोल नहीं होगा। इफ यू वांट टू कंट्रोल योर if you want guaranteed buy and sell average rate as mentioned earlier which I discussed the strategy, then you must choose the LTP। यानी कि मॉर्निंग पे जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा उसको लेगा और उसके बिड एंड आस्क का आपका जो बाय एंड सेल का ऑफसेट डाल के ये 2 ऑर्डर प्लेस करेगा। जो ये आइडियल सिचुएशन है वो एलटीपी का है। मैं एलटीपी यूज कर रहा हूँ, पहले मैं बिड आस्क कर रहा था, वो मैंने बिड आस्क को निकलवा के अभी एलटीपी लेके आ गया। तो आपको एलटीपी यूज करना है अगर आपको नया वाला सेटअप यूज करना है तो, बट यू कैन यूज इवन योर ओन रेट और बिड एंड आस्क व्हाटएवर यू वांट टू रेट इट। नाउ नेक्स्ट मेजर जो इशू लेके आए हम वो है मेजर मॉनिटरिंग इशू ऑफ स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट रिजॉल्व। टिल नाउ आवर स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट वाज बेस्ड ऑन द अनरियलाइज्ड P&L। तो उसमें काफी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा था। वो बोले थे कि यार हमको दिखता क्या है और क्या कर रहा है, उससे बहुत इश्यूज आ रहे हैं। दे वर नॉट हैप्पी विद इट। लॉट ऑफ फीडबैक कम कि दे वांटेड टू मॉनिटर ऑन द डेली का जो आपका जो प्रॉफिट हो रहा है या डेली का जो P&L हो रहा है या डेली का जो MTM हो रहा है उसके बेस पे दे वांटेड टू मॉनिटर इट। So now we have come up with that feature. Now stop loss and book profit will be based on M2M and can be easily monitored through शून्य web और मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कहीं से भी आप देखोगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि आपका जो है प्रॉफिट कितना चल रहा है। उसके बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट यू कैन put it and then it will monitor exactly on basis of that. So this is a major improvement. Option given to user to cancel all the pending orders or keep pending for algo trader to execute if any stop loss or big profit triggered. Initially हम जो लेके आए थे वो क्या लेके आए थे कि you should cancel all the pending order. Then revise करके जो हम लेके आए जो बीटा वर्जन था उसमें था कि वो ऑर्डर को कैंसिल नहीं करता था। Now we have come up with another change कि you have both options available. You want to cancel pending order तो उसमें आप यस कर दोगे आपका क्रेडिट फाइल के अंदर तो आपके सारे ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। अगर आप नहीं बोलते मेरे को तो जो मेरे पेंडिंग ऑर्डर हुए उनको रहने दो तो यू कैन हैव दैट सेटअप आल्सो। सो दैट सेटअप इज अवेलेबल इन द न्यू वर्जन। लॉग शीट, this is another one good feature which we have come up. The log sheet for all trades will be saved in your algo trader folder for 2 days to evaluate your trades, running of algo, triggering of stop loss और book profit और cancellation of orders when SL और BPs। कहने का मतलब यह है कि आपके जो सारे जो ट्रेड हो रहे हैं वो आपके 2 दिन तक आपकी लॉग फाइल में सेव होते रहेंगे। तो कभी भी अगर वो डाउट आया ये ऐसे क्यों हुआ, मेरा SL कब हिट हो गया था, उसके बाद में क्या हुआ, या मेरा बुक प्रॉफिट कब हिट हो गया तो उससे क्या आया, तो एवरीथिंग यू कैन ओपन दैट लॉग शीट एंड देन यू कैन evaluate your trade and this will be available only for 2 days and automatically फिर जो है एक दिन जब आगे जाएगा तो वो पुराना वाला लॉग शीट का जो ट्रेड होगा वो कैंसिल होता जाएगा। तो it will be always only for 2 days it will be there. We could have made even for 7 days, we could have made for 15 days, but उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका फाइल साइज बढ़ता जा रहा था। We thought 2 days is enough, actually 24 hours is enough. तो we kept one more day कि चलो ठीक है 2 दिन तक आपको डेटा अवेलेबल है, you can evaluate your trades. You can run multiple algos for equity, currency, commodity and F&O in cloud version for multiple accounts. यानी कि जैसे आपके फैमिली के 4 अकाउंट हैं, आपका, आपकी वाइफ का, आपके लड़के का, लड़की का, तो 4 वो अकाउंट और उनके भी मल्टीपल एल्गोस, यानी कि 4 उनके हर एक का एल्गो इक्विटी करेंसी है, यानी कि 16 आप एल्गोस एक अकाउंट में चला सकते हो इन वन क्लाउड अकाउंट। क्लाउड में ये आपको पॉसिबिलिटी है। प्राइम में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, वो प्राइम में ये हो नहीं पाएगा। एक्चुअली फीचर देने में मुझे प्रॉब्लम नहीं था, बट वो जो आपका वो जो उसमें बैच फाइल जो बनता है वो उसमें पॉसिबल नहीं था जो हम सिस्टम चाह रहे थे, तो इसलिए फिर हमको क्लाउड में रखा। क्लाउड में सब काम ऑटोमेटिकली हो जा रहा है और वो प्राइम में नहीं होता था, तो दैट इज द रीजन वी हैव गिवन दिस ऑप्शन ओनली इन क्लाउड। दिस वाज देन अनदर मेजर चेंजेस इन Algo Trader. You can run only one instance of Algo per client in your laptop in Prime version. However, you can run single instance of Algo in multiple accounts in your laptop. मतलब जो अपना प्राइम में है एक क्लाइंट का एक एल्गो चलेगा, बट अगर आपके 4 अकाउंट हैं फैमिली के तो वो 4 आपके वहां चला दोगे प्राइम के अंदर, बट हर एक का एक ही चलेगा। यानी कि जैसे आपका एक क्लाइंट कोड है FA0001, 002, 003, तो 01 का एक एल्गो चलेगा, 02 का एक एल्गो चलेगा। ये आप कर सकते हो अभी भी आपके लोकल प्राइम वर्जन के अंदर, यानी कि 4 एल्गो वो चल जाएंगे। लेकिन हर अकाउंट का अगर आपको 4 एल्गो चलाने हैं तो आपको क्लाउड लेना जरूरी है। तो Algo, अच्छा, then next feature is Algo Trader Cloud will start automatically every Monday to Friday at 9 AM for currency and commodity, 9:15 AM for equity and F&O, and stop at 3:30 PM for equity,
5 PM फॉर करेंसी एंड 11:30 PM फॉर कमोडिटी, है ना, ऑटोमेटिकली चलेगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार सेटअप कर दिया हमारे ललित ने, उसके बाद में बस एवरी डे मॉर्निंग में, इवनिंग में, मंडे टू फ्राइडे इस तरह से आपका काम करते रहेगा, आप कुछ नहीं करना, एक बार चला के छोड़ दीजिए इसको, बस 1 महीने तक चला के छोड़ दो, 1 महीने तक ये ऑपरेट करता रहेगा ये। जस्ट अपडेट योर गूगल शीट फ्रॉम एनी लोकेशन और एनी डिवाइस, कहीं से भी अपने गूगल शीट को अपडेट कर लो, किसी भी लोकेशन से कर लो, आप टूर पे गए हो, हॉलीडे पे गए हो, जस्ट फ्रॉम एनी डिवाइस, आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप, उसको अपडेट करो, आपका ये एल्गो ट्रेडर क्लाउड आपका चलता रहेगा। ऑप्शन टू यूज अर्लियर अनकंट्रोल चेन रिएक्शन और न्यू कंट्रोल चेन रिएक्शन, अभी हमने ये ऑप्शन भी दिया है कि इफ यू वांट, आप बोले नहीं मुझे तो पुराना वाला वर्जन ही मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें मुझे प्रॉफिट ज्यादा रहा था, लॉस ज्यादा रहा था, मुझे चलेगा, बट मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, तो इफ यू वांट टू यूज दैट अर्लियर वर्जन, दैट ऑप्शन इज आल्सो देयर, बट माय हम्बल सजेशन बी यूज द न्यू कंट्रोल चेन रिएक्शन, डोंट यूज, बिकॉज इसमें हर चीज आपके कंट्रोल में है। देन ये एक बहुत बढ़िया फीचर निकल के आया है, long term unlimited dynamic GTT orders for unlimited stocks to sell or buy at your target price without blocking your trading capital and demat holding till your desired rates are triggered। कहने का मतलब यह है कि in the Algo Trader cloud you can put 200 GTT order, you can put 1000 GTT orders for 1000 stocks as per your target buy and sell, और उस वाले जो आपने ऑर्डर डाले हुए हैं वो ऑर्डर आपके ट्रिगर नहीं होंगे जब तक आपके रेट नहीं आ जाएगा। इसका मतलब आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा। आपने जितने जैसे आपके NSE 500 है, अब NSE 500 के आपने एक शेयर का आपने ऑर्डर डाल दिया आपने as per your target date, which may be 10% below your rate or maybe 20% below the current rate. You can put your rate for 20% below your current rate for 500 shares to buy one share whenever their stock is fallen by 20%. It will wait for that rate to come, जब वो रेट आएगा तभी आपका ऑर्डर जाएगा, एंड इट इज अ डायनेमिक जीटीटी। अभी जो हमारा जीरोधा में जो या और कहीं जीटीटी मिलता है वो स्टैटिक होता है, एक बार वो रेट आ गया उसके बाद में ऑर्डर आपका खत्म, उसके आगे कुछ नहीं होता। ये अपना उस ऑर्डर तक पहले वेट करेगा और उसके बाद में आपका चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा जो आपने सेट ऑफ डाला हुआ है। सो दिस इज अगेन एन एक्सेलेंट फीचर फॉर द इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं कि यार मेरे को तो रिलायंस 2000 में खरीदना है, मेरे को तो HDFC बैंक 1000 में खरीदना है, और 1000 पे मेरे को एक शेयर खरीदूंगा मैं, और उसके बाद में हर 50 रुपए एक शेयर और खरीदूंगा। आप अपना वैल्यू डाल के छोड़ दो, एक साल भर तक ये बेचारा जो है एल्गो देखता रहेगा देखता रहेगा देखता रहेगा, कभी ना कभी तो अगर रिलायंस का रेट 2000 आ गया तो आपका ये जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपका कैपिटल यूज होगा। तो दिस इज अनदर एक्सेलेंट फीचर ऑफ दिस एल्गो ट्रेडर। यू कैन प्लेस अनलिमिटेड GTT orders. Chain reaction will start only after your target is triggered in one side, buy or sell, or both and buy. You can put whatever you want. You can have buy or sell, or you can have both buy and sell. Anything you can put in the GTT orders. In case of any error in jobbing file, Algo Trader will show the name of the stock on the user screen. अभी तक क्या होता था कि वो जो एरर आता था तो वो बंद हो जाता था। अभी क्या करेगा कि Algo Trader आपका वो स्टॉक का नाम बताएगा कि यार इसमें आपने एरर कुछ किया है, सिंबल का मिस्टेक है या कुछ वैल्यू है, तो इट विल वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द एरर एंड टू रेक्टिफाई द एरर। तो ये एक अनदर फीचर है। सो ये हो गया था जो नए इश्यूज हमने डाला है। नाउ हाउ टू मॉनिटर स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट ट्रिगर्स बेस्ड ऑन मेंबर्स फीडबैक। नाउ Algo Trader will monitor M2M on to trigger stop loss or book profit. M2M is actually is unrealized M2M plus book P&L. ये theoretical है, फिर भी you must know now. तो what is M2M? Unrealized M2M plus booked P&L. Unrealized M2M is the net open quantity into average buy or sell rate minus LTP. मतलब unrealized M2M कभी भी कैलकुलेट करना है। So this ये आपका जो डेस्कटॉप वर्जन है उसमें बहुत अच्छे से आपको नजर आएगा। जो unrealized M2M होता है that is a net open quantity into average buy or sell price minus LTP. Book P&L जो होता है वो sum of all squared of quantity within bracket sell price minus buy price। थ्योरेटिकल है, अभी इतना आपको जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो सिर्फ M2M पे कर रहे हो। ये M2M सब बैकग्राउंड में ये सब ये कैलकुलेशन चलता रहता है। सो व्हेनेवर स्टॉप लॉस और बुक प्रॉफिट टारगेट ट्रिगर्ड, Algo Trader will square off your net open quantity at market rate। जो भी आपने स्टॉप लॉस डाला है या बुक प्रॉफिट टारगेट डाला है, जैसे ही वो आ जाएगा ये आपका जो भी नेट क्वांटिटी होगा एक मार्केट रेट पे इसको स्क्वायर करके आपका पोजीशन जीरो कर देगा। Now, जैसा मैं पहले बोला था, यूजर will have an option to select as to whether all pending orders should be cancelled or not when any stop loss or book profit is triggered। आप बोलते हो साहब मेरे को तो सारे ऑर्डर कैंसिल करने हैं, तो you can use that option। You want to say कि नहीं मेरे को तो नहीं कैंसिल करना है, मेरे let my pending order be remain there। So that option also we have given। ये भी this was also based on the members feedback।
कुछ मेंबर बोल रहे थे हमको ऑर्डर कैंसिल करना है, कुछ बोलते हैं नहीं कैंसिल करना है, तो दैट यू कैन डू इट नाउ. However, please remember that entire book P&L may be consumed before stop loss is triggered. ये M2M का जो इशू है, जो इसलिए why I was liking personally कि we should monitor on the basis of unrealized M2M, but unrealized M2M पे members comfortable नहीं हो रहे थे. क्यों कि उसमें अभी जो M2M में अंदर क्या होता है कि जब आपने मान लो बुक प्रॉफिट आपने ले लिया मान लो डे का 2000 रुपए और आपका M2M का आपने स्टॉप लॉस डाला 1000 रुपए, तो वो क्या करेगा, जो 2000 का पहले वो जीरो होगा, जीरो होने के बाद में 1000 रुपए जब आएगा तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, नहीं तो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा. पहले वाले पे जो था वो बुक प्रॉफिट को वो बाहर निकाल देता था, और जब आपका अनरियलाइज आपका जब वो 1000 रुपए आता था तभी वो ट्रिगर होता था. अभी क्या है, अभी वो दोनों साइड में पहले वो पूरा क्वांटिटी को पहला जो भी स्टॉप लॉस या प्रॉफिट जो आपने किया हुआ है उसको जीरो करेगा, उसके बाद में जब वैल्यू जाएगा तब आपका जो है ये ट्रिगर होगा. तो ये थोड़ा सा चेंज है. Now there is no need to put multiple rows. However, user to free use multiple rows. हम पहले ये मॉनिटर करने के लिए जो डिफरेंट रोज को यूज कर रहे थे, अभी जरूरत नहीं है, अभी एक ही रोज से आपका काम हो जाएगा. इन केस ऑफ मल्टीपल, अगर फिर भी आप मल्टीपल रोज को यूज करते हो आप किसी एक सिंबल के लिए, तो प्लीज रिमेंबर lowest stop loss and lowest book profit among all rows of the particular symbol will be considered to monitor and trigger stop loss and book profit. यानी कि जैसे आपने 4 रोज डाला है, तो चारों रोज के अंदर जो मिनिमम स्टॉप लॉस होगा और जो मिनिमम बुक प्रॉफिट होगा उसको एल्गो आपका जो है ट्रैक करेगा. तो वो उसके पर आपने दूसरी रो में अगर आपको उसने आपने कम प्रॉफिट डाल दिया तो दूसरी रो का प्रॉफिट लेके मॉनिटर कर देगा. वो मल्टीपल रोज के अंदर इशू है. अगर मल्टीपल रोज नहीं यूज कर रहे हो तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है. You are advised to keep same stop loss and profit target in all multiple rows if you intend to use the multiple rows. But max buy and sell quantity of individual row will be considered to place orders when triggered. Keep an eye on the total initial order placed in multiple order. यानी अगर multiple order आपने यूज किया है तो हर रो का मैक्स बाई और सेल क्वांटिटी को कंसिडर करेगा, बट प्रॉफिट लॉस और स्टॉप लॉस जो है वो आपका मिनिमम पे कंसिडर करेगा और मैक्सिमम बाई एंड सेल वाली को इंडिविजुअल रो पे कंसिडर करेगा. बट ये प्लीज चेक कर लेना कि जब मल्टीपल रो डालते हो तो वो हर एक का इनिशियल ऑर्डर डालता है, तो वो इनिशियल ऑर्डर आपका मैक्स क्वांटिटी से ज्यादा हो गया तो फिर वो चेन रिएक्शन आपका रुक जाएगा. तो कीप एन आई ऑन द टोटल इनिशियल ऑर्डर प्लेस्ड इन मल्टीपल रोज. माय सिंसियर सजेशन विल बी डोंट यूज द मल्टीपल रोज नाउ. वो बहुत कंफ्यूजन उससे हो रहा था, बहुत उल्टे सीधे ट्रेड हमारे हो रहे थे. सिंगल रो पे चलो, हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगा. इन केस ऑफ ओवरनाइट पोजिशन, ये अभी जो नया वाला जो आया है उसमें ये इशू है, आप देख लेना. In case of overnight position, M2M of previous day will be debited, credited to your account on the same day. यानी कल का जो M2M है वो आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट हो जाएगा and will not be carried forward to today. But today's M2M will be calculated based on previous day's settlement price and today's LTP and may trigger current stop loss, book profit if very small stop loss or book profit is taken. थोड़ा कंफ्यूजन है. कहने का मतलब ये है कि कल का जो M2M था वो कल M2M आपका डेबिट या जो क्रेडिट था वो आपके अकाउंट में हो जाएगा. उसके बाद में आपका जो NSE एक प्राइस डिक्लेयर करता है, सेटलमेंट प्राइस, वो सेटलमेंट प्राइस से जो आज का जो LTP है करंट टुडेज डेट, उसके बेसिस पे फिर M2M कैलकुलेशन चालू हो जाएगा आपका. तो थोड़ा सा ये आपको कंट्रोल देखना, मॉनिटर करना पड़ेगा कि M2M कैसा चल रहा है. आपने बहुत छोटा अपने स्टॉप लॉस प्रॉफिट रखा तो वो कभी भी ट्रिगर हो सकता है. ये M2M का इशू है जो कि अनरियलाइज में नहीं होता था. But upon now, since we are moving from unrealized to M2M, so this issue will come. So this is how you will monitor stop loss and book profit target. Now M2M का margin calculation का मैंने sheet दिया है. You just take the photo of this thing. How the margin calculation is done. This I'm not going to explain in detail. But पूरा का पूरा मैंने बताया है ये कि कैसे आपका margin calculate होता है वो सेटलमेंट प्राइस के ऊपर, कि सेटलमेंट प्राइस आपका ये हो गया तो अगले दिन का कैसे कैलकुलेट होगा. ये जस्ट थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है. कॉन्सेप्ट आपको बस ये देखना है कि कल का M2M कल एडजस्ट हो जाएगा. जो सेटलमेंट प्राइस कल का जो बचा है उसके बेसिस पे आज का आपका M2M कैलकुलेट होगा. आज का मॉर्निंग प्राइस पे कैलकुलेट नहीं होगा. कल का सेटलमेंट प्राइस, आज का LTP, उस दोनों के बेसिस पे आज का M2M आपका कैलकुलेट होगा. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो ये तो अपना यूजुअल है कि एल्गो ट्रेडर बेसिक वाला 1000 रुपीज रेट था, एल्गो ट्रेडर प्राइम का 2000 रुपीज पर मंथ है और क्लाउड का 3000 रुपीज पर मंथ है. फ्री ट्रायल ऑफर इज ओनली फॉर 15 days. नो ट्रायल ऑफर ऑफर्ड फॉर एल्गो ट्रेडर क्लाउड. यू कैन यूज द एनी ट्रायल ऑफर ओनली फॉर द एल्गो ट्रेडर प्राइम. अगर आपको क्लाउड यूज करना है तो उसमें फ्री ट्रायल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 4 घंटा लग रहा है सेटअप करने के लिए. तो उसके लिए बाकी फीचर तो ऑलमोस्ट सेम है,
ओनली या मल्टीपल इंस्टेंस से चला रहे हो तो ऑल अदर फीचर्स आर एग्जैक्टली सेम। तो इसके अंदर आपका ट्रायल ऑफर नहीं है। एनुअल सब्सक्रिप्शन विल बी एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ एनरोलमेंट। सपोज यू आर माइग्रेटिंग फ्रॉम योर बेसिक और प्राइम टू क्लाउड, तो जिस दिन भी आप क्लाउड में आओगे उस दिन से अपन 1 साल का आपको रेट दे देंगे आपको। ये नहीं कि आपने 3 महीने का तो यार वो कर लिया तो मैं 9 महीने का दूं, नहीं। The day you upgrade to cloud, you will get one full year subscription from that particular date. Franchise को 10% incentive on monthly or annual subscription on first payment. Yeah, you can make the payment by UPI or you can make the payment by Google Pay, WhatsApp, Phone Pay, anything. Mention your FinVisha ID there when you're making any payment in the UPI column. You can watch earlier Algo Trader on this channel. Pay subscription fee in advance, that we all know. Refund policy दिया है। Now, the special offer ये है कि existing subscribers of Algo Trader Basic and Algo Trader Prime can upgrade up to 10th June now to get full 1 year membership of Algo Trader Cloud. यानी कि 10 जून तक अगर आप वो बैलेंस पेमेंट कर देते हो तो आपको फुल 1 ईयर का मेंबरशिप Algo Trader Cloud का 10 जून तक मिल जाएगा। 10 जून के बाद अगर आते हो तो आपका नया आपको ही लेना पड़ेगा। इसमें भी आप एक पुराने वाले से नए में आ रहे हो तो जस्ट मेक द डिफरेंस पेमेंट एंड देन यू कैन गेट द Algo Trader Cloud. ये डेटा शीट भेजना है, ये आपका सबके डेटा शीट है, दैट वी ऑल नो। ये यूपीआई के थ्रू अगर आपको पेमेंट करना है तो दिस आल्सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अर्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यू सिस्टम। नाउ दिस इज ओपन टू क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। Basically the target is transformation of a casual investor to an intelligent and smart investor. We should be able to compete with the FIIs and DIIs, and we should not be played by the market player. जो वो गेम खेलते हैं उस गेम से हमारे को बचना है। और ये Algo Trader मैं आपको दे रहा हूँ एश्योरेंस, गारंटी दे रहा हूँ कि यू विल बी एबल टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम द नेक्सस ऑफ दिस मार्केट प्लेयर्स। चाहे वो टीवी एंकर हो, चाहे आपके FII DIIs हो, ऑपरेटर्स हो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन बाय द एंड ऑफ द डे इन एडवांस। So let us also make money every day like market players and function like FII DIIs through machine trading. This was all about the presentation. So open to you.